ایک زمانے کی بات ہے، دور دراز پہاڑوں اور دریاؤں کے درمیان ایک عظیم سلطنت تھی جس کا نام نورستان تھا۔ اس سلطنت کا بادشاہ بہت طاقتور تھا۔ اس کا نام بادشاہ جلال الدین تھا۔ اس کے پاس بے شمار فوجیں تھیں، خزانے سونے چاندی سے بھرے تھے اور اس کی حکومت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ مگر ایک عجیب بات تھی، اتنی طاقت اور دولت کے باوجود بادشاہ کے دل میں ایک عجیب بے چینی رہتی تھی۔ رات کو جب سارا محل خاموش ہو جاتا اور پہرے داروں کے قدموں کی آوازیں گونجتیں، بادشاہ جلال الدین اپنی کھڑکی کے پاس کھڑا آسمان کو دیکھتا رہتا۔ وہ سوچتا رہتا، آخر زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک رات چاند آسمان پر پورا روشن تھا۔ بادشاہ اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں 3 عجیب سوال پیدا ہوئے، ایسے سوال جو اس کی پوری زندگی بدل دینے والے تھے۔ بادشاہ نے خود سے کہا، اگر مجھے ان 3 سوالوں کے جواب مل جائیں تو شاید نہ کبھی غلط فیصلہ نہ کروں۔ وہ 3 سوال یہ تھے، سب سے اہم وقت کون سا ہوتا ہے؟ سب سے اہم انسان کون ہوتا ہے؟ سب سے اہم کام کون سا ہوتا ہے؟ بادشاہ نے سوچا، اگر مجھے ان سوالوں کے جواب مل جائیں تو میں اپنی سلطنت کو دنیا کی سب سے بہترین سلطنت بنا سکتا ہوں۔ اگلی صبح سورج طلوع ہوتے ہی بادشاہ نے دربار لگانے کا حکم دیا۔ پورے ملک میں اعلان کرا دیا گیا، جو شخص بادشاہ کے 3 سوالوں کا درست جواب دے گا اسے سونے کے 1000 سکے اور بادشاہ کی خاص عزت دی جائے گی۔ یہ خبر جنگلوں، شہروں اور گاؤں تک پھیل گئی۔ علماء، حکیم، فلسفی، سپاہی، تاجر سب بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دربار میں سینکڑوں لوگ جمع تھے۔ بادشاہ اپنے سنہری تخت پر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، میں تم سب سے 3 سوال پوچھوں گا، جو شخص صحیح جواب دے گا اسے بڑا انعام ملے گا۔ پھر اس نے اپنے سوال بلند آواز میں دہرائے۔ پورا دربار خاموش ہو گیا۔ سب لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ سب سے پہلے ایک بڑا عالم آگے آیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، سب سے اہم وقت مستقبل ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں ہمیشہ مستقبل کی تیاری کرنی چاہیے۔ بادشاہ نے سر ہلایا، مگر وہ مطمئن نہیں ہوا۔ پھر ایک وزیر آگے آیا۔ اس نے کہا، سب سے اہم انسان بادشاہ خود ہوتا ہے، کیونکہ بادشاہ کے فیصلوں سے پوری قوم کی تقدیر بدلتی ہے۔ بادشاہ نے پھر سر ہلایا، مگر اس کے دل کو سکون نہ ملا۔ پھر ایک سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس نے کہا، سب سے اہم کام جنگ جیتنا ہوتا ہے، اگر سلطنت مضبوط ہو تو سب کچھ ٹھیک رہتا ہے۔ دربار میں کچھ لوگوں نے تالیاں بجائیں، لیکن بادشاہ کی پیشانی پر شکنیں بڑھ گئیں، کیونکہ ہر شخص کا جواب مختلف تھا۔ کوئی کہتا سب سے اہم وقت کل ہے، کوئی کہتا سب سے اہم انسان دوست ہوتا ہے، کوئی کہتا سب سے اہم کام عبادت ہے، کوئی کہتا سب سے اہم کام دولت کمانا ہے۔ مگر بادشاہ کو کوئی جواب پسند نہ آیا۔ اس نے غصے سے کہا، تم میں سے کوئی بھی میرے سوالوں کا درست جواب نہیں دے سکا۔ دربار خاموش ہو گیا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اسی وقت ایک بوڑھا وزیر آہستہ سے آگے آیا۔ اس نے جھک کر کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ واقعی ان سوالوں کے جواب چاہتے ہیں تو آپ کو پہاڑوں میں رہنے والے ایک درویش کے پاس جانا ہوگا۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، کون درویش؟ وزیر نے کہا، وہ ایک بزرگ انسان ہے۔ وہ نہ بادشاہوں کے دربار میں آتا ہے نہ کسی سے ملتا ہے، مگر لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت دانا ہے۔ بادشاہ نے فوراً فیصلہ کر لیا، میں خود اس درویش کے پاس جاؤں گا۔ مگر اس نے یہ سفر خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح وہ عام کپڑے پہن کر محل سے نکلا۔ صرف ایک وفادار سپاہی اس کے ساتھ تھا۔ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر گھنے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی گھنٹے سفر کے بعد وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی وادی میں پہنچے۔ وہاں ایک جھونپڑی تھی۔ جھونپڑی کے سامنے ایک بوڑھا درویش زمین کھود رہا تھا۔ وہ بہت کمزور لگ رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بادشاہ اس کے پاس گیا اور بولا، بابا جی، میں آپ سے 3 سوال پوچھنے آیا ہوں۔ مگر درویش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے زمین کھودتا رہا۔ بادشاہ نے دوبارہ کہا، بابا جی، میرے سوال بہت اہم ہے۔ مگر درویش پھر بھی خاموش رہا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ درویش بہت تھک چکا ہے۔ اس نے کہا، بابا جی، آپ آرام کریں، میں کھدائی کر دیتا ہوں۔ درویش نے خاموشی سے کدال بادشاہ کے ہاتھ میں دے دی۔ بادشاہ زمین کھودنے لگا۔ گھنٹوں گزر گئے، مگر درویش نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ سورج ڈھلنے لگا۔ بادشاہ تھک کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، بابا جی، اگر آپ میرے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اسی لمحے اچانک جھاڑیوں میں سے ایک آدمی بھاگتا ہوا نکلا۔ وہ بری طرح زخمی تھا۔ اس کے پیٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا درویش کی طرف آیا اور زمین پر گر گیا۔
बादशाह और दरवेश हैरान रह गए। बादशाह फौरन उसके पास दौड़ा। उसने देखा कि जख्म बहुत गहरा है, अगर फौरन इलाज न किया गया तो वो मर सकता था। बादशाह ने जल्दी से कपड़ा फाड़ा और जख्म पर बांध दिया। फिर उसने जख्मी आदमी को उठाकर झोपड़ी के अंदर लिटाया। रात गहरी हो चुकी थी। बादशाह सारी रात उस आदमी की देखभाल करता रहा और उसे ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये जख्मी आदमी असल में उसका दुश्मन था और अगर वो मर जाता तो बादशाह की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती। लेकिन अभी बादशाह को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था और ना ही उसे ये मालूम था कि उसके 3 सवालों का जवाब इसी रात मिलने वाला है। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। जंगल के अंदर सिर्फ झिंगरों की आवाजें आ रही थीं। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और दरवेश की छोटी सी झोपड़ी में एक मध्यम सा चिराग जल रहा था। बादशाह जलालुद्दीन सारी रात जागता रहा। वो बार बार जख्मी आदमी के जख्म पर कपड़ा बांधता, पानी पिलाता और उसका ख्याल रखता। कई बार उसने सोचा, मैं एक बादशाह हूं और आज एक अजनबी की खिदमत कर रहा हूं। लेकिन फिर उसके दिल में एक अजीब सुकून पैदा होता। कुछ देर बाद जख्मी आदमी ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। उसने कमजोर आवाज में कहा, पानी। बादशाह फौरन उठा और उसे पानी पिलाया। जब उस आदमी को थोड़ा होश आया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता से बोला, मुझे माफ कर दे। बादशाह हैरान रह गया। उसने कहा, मैं तुम्हें क्यों माफ करूं? तुमने क्या किया है? जख्मी आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचानते मगर मैं आपको जानता हूं। बादशाह चूक गया। तुम मुझे कैसे जानते हो? आदमी ने कांपती आवाज में कहा, आप ही बादशाह जलालुद्दीन हैं। बादशाह की आंखें हैरत से फैल रहीं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? आदमी ने जवाब दिया, मैं आपका दुश्मन हूं। यह सुनकर बादशाह चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। उसने आहिस्ता से पूछा, मेरा दुश्मन? आदमी ने सर हिलाया, जी, मैं आपसे बदला लेने आया था। यह सुनकर दरवेश भी खामोशी से उन दोनों को देखने लगा। जख्मी आदमी ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। चंद साल पहले आपके सिपाहियों ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया था। वो बेकसूर था मगर जंग के दौरान उसे दुश्मन समझकर मार दिया गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूंगा। बादशाह खामोशी से सुनता रहा। आदमी ने आगे कहा, जब मुझे मालूम हुआ कि आप उस दरवेश से मिलने आने वाले हैं तो मैंने सोचा यही मौका है। मैं झाड़ियों में छुप कर बैठ गया था ताकि आपको कत्ल कर सकूं। बादशाह के दिल की धड़कन तेज हो गई। आदमी ने कहा, मगर आपके सिपाहियों ने मुझे देख लिया और मुझ पर हमला कर दिया। मैं जख्मी हो गया और भागते हुए यहां पहुंच गया। फिर उसने बादशाह की तरफ देखा और कहा, लेकिन जब मैं यहां पहुंचा तो आपने मेरी जान बचाई। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं आपको मारने आया था और आपने मुझे बचा लिया। वो रोने लगा। बादशाह सलामत, मैं आपसे माफी मांगता हूं। अगर मैं जिंदा बच गया तो जिंदगी भर आपकी खिदमत करूंगा। झोपड़ी में गहरी खामोशी छा गई। बादशाह जलालुद्दीन उस आदमी को देखता रहा। उसके दिल में अजीब जज्बात पैदा हो रहे थे। वो सोच रहा था, ये वही शख्स है जो मुझे कत्ल करने आया था, मगर आज मैंने उसकी जान बचाई है। चंद लम्हों बाद बादशाह ने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं। जख्मी आदमी हैरान रह गया। बादशाह ने कहा, न सिर्फ माफ करता हूं बल्कि मैं तुम्हारे भाई के मामले की भी तहकीक करवाऊंगा। अगर उसके साथ नाइंसाफी हुई है तो तुम्हें इंसाफ दिया जाएगा। यह सुनकर जख्मी आदमी बादशाह के कदमों में गिर पड़ा। वो बार बार कहने लगा, बादशाह सलामत, आप बहुत बड़े इंसान हैं। रात गुजर गई। सुबह सूरज की रोशनी झोपड़ी के अंदर आ रही थी। जख्मी आदमी की हालत अब बेहतर थी। वो सो रहा था। बादशाह झोपड़ी के बाहर आया जहां दरवेश बैठा था। बादशाह ने कहा, बाबा जी, मैं कल से आपके पास हूं। मैंने आपसे 3 सवाल पूछे थे मगर आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। दरवेश मुस्कुराया। उसने आहिस्ता से कहा, तुम्हें जवाब मिल चुके हैं। बादशाह हैरान रह गया। मुझे जवाब मिल गए? कैसे? दरवेश ने कहा, अगर तुम कल मेरी मदद न करते और खुदाई न करते तो तुम वापस जाते वक्त उस आदमी के हाथों मारे जाते। बादशाह खामोश हो गया। दरवेश ने कहा, इसलिए सबसे अहम वक्त वही लम्हा था जब तुम मेरी मदद कर रहे थे। बादशाह गौर से सुनने लगा। दरवेश ने आगे कहा, और उस वक्त सबसे अहम इंसान में था क्योंकि तुम मेरी मदद कर रहे थे। बादशाह के चेहरे पर हैरत थी। दरवेश ने कहा, फिर जब वो जख्मी आदमी आया तो सबसे अहम इंसान वो था क्योंकि तुम उसकी जान बचा रहे थे। बादशाह अब पूरी तवज्जो से सुन रहा था, मगर अभी एक सवाल बाकी था, सबसे अहम काम कौन सा है? और दरवेश अब वो राज बताने वाला था
जो बादशाह की पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। सुबह की नर्म रोशनी पहाड़ों पर फैल रही थी, परिंदे दरख्तों पर बैठकर चहचहा रहे थे और ठंडी हवा दरवेश की झोंपड़ी के इर्द गिर्द चल रही थी। बादशाह जलालुद्दीन दरवेश के सामने बैठा था। उसके जहन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर मेरे 3 सवालों का असल जवाब क्या है? दरवेश ने खामोशी से जमीन की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोलना शुरू किया। बादशाह जलालुद्दीन, दुनिया के ज्यादातर लोग जिंदगी भर इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते रहते हैं, मगर उन्हें कभी सही जवाब नहीं मिलता। बादशाह पूरी तवज्जो से सुन रहा था। दरवेश ने कहा, तुम कल यहां आए थे, तुमने मुझसे सवाल पूछा था, मगर मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं फौरन जवाब दे देता तो तुम शायद इस बात को समझ ना पाते। बादशाह ने सर हिलाया। दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और बोला, कभी कभी जिंदगी हमें जवाब लफ्जों में नहीं बल्कि वाकयात में देती है। बादशाह हैरान हो गया। दरवेश ने कहा, कल जो कुछ हुआ वही तुम्हारे सवालों का जवाब है। बादशाह ने बेसब्री से कहा, बाबा जी बराह करम साफ साफ बताएं। दरवेश मुस्कुराया, फिर उसने पहला जवाब दिया। तुम्हारा पहला सवाल था, सबसे अहम वक्त कौन सा होता है? दरवेश ने कहा, सबसे अहम वक्त मौजूदा लम्हा होता है। बादशाह ने हैरत से पूछा, मौजूदा लम्हा? दरवेश ने सर हिलाया। हाँ, क्योंकि यही वो वक्त है जो हमारे इख्तियार में होता है। न माजी हमारे हाथ में है, न मुस्तकबिल। वो बोलता रहा, कल जब तुम मेरे साथ जमीन खोद रहे थे वही सबसे अहम वक्त था, क्योंकि अगर तुम वो काम ना करते तो तुम्हारा दुश्मन तुम्हें कत्ल कर देता। बादशाह खामोश हो गया। उसे एहसास होने लगा कि दरवेश सही कह रहा है। दरवेश ने कहा, लोग हमेशा माजी पर अफसोस करते रहते हैं या मुस्तकबिल की फिक्र में रहते हैं, मगर वो मौजूदा लम्हा खो देते हैं। फिर दरवेश ने दूसरा जवाब दिया। तुम्हारा दूसरा सवाल था, सबसे अहम इंसान कौन होता है? दरवेश ने जवाब दिया, सबसे अहम इंसान वो होता है जो इस वक्त तुम्हारे सामने मौजूद हो। बादशाह हैरान हो गया। दरवेश ने वजाहत की, क्योंकि तुम नहीं जानते कि अगले लम्हे तुम किससे मिलने वाले हो। वो बोलता रहा, कल पहले मैं तुम्हारे सामने था, इसलिए मैं सबसे अहम इंसान था। फिर उसने कहा, और जब वो जख्मी आदमी आया तो वो सबसे अहम इंसान बन गया, क्योंकि इस वक्त इसे तुम्हारी मदद की जरूरत थी। बादशाह ने गहरी सांस ली। उसके दिल में अजीब सुकून पैदा हो रहा था, मगर अभी एक सवाल बाकी था, सबसे अहम काम कौन सा है? बादशाह ने बेसब्री से पूछा। और तीसरा सवाल? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, तीसरा सवाल सबसे अहम है। बादशाह आगे झुक गया। दरवेश ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, सबसे अहम काम अच्छाई करना और दूसरों की मदद करना है। बादशाह की आंखों में हैरत थी। दरवेश ने कहा, क्योंकि इंसान इस दुनिया में इसी मकसद के लिए भेजा गया है। फिर उसने कल के वाक़े की तरफ इशारा किया। अगर तुमने कल इस जख्मी आदमी की मदद ना की होती तो वो मर जाता। वो रुक कर बोला, और शायद तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए नफरत रह जाती। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, यह सच है। दरवेश ने कहा, लेकिन तुमने इसकी मदद की और तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा दोस्त बन गया। बादशाह के दिल में अजीब रोशनी सी फैल गई। उसे एहसास हुआ कि वो पूरी जिंदगी गलत चीजों के पीछे भागता रहा था, दौलत, ताकत, जंगें, मगर असल चीज कुछ और थी। दरवेश ने कहा, याद रखो बादशाह, अगर तुम हमेशा मौजूदा लम्हे की कदर करोगे और अपने सामने वाले इंसान के साथ अच्छाई करोगे तो तुम कभी गलत फैसला नहीं करोगे। बादशाह की आंखों में नमी आ गई। उसने दरवेश के हाथ पकड़ लिए। बाबा जी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। उसी वक्त झोंपड़ी के अंदर से आवाज आई। वो जख्मी आदमी जाग चुका था। वो बाहर आया और बादशाह के सामने झुक गया। बादशाह सलामत, मैंने अपने कबीले के लोगों को खबर भेज दी है, हम अब आपके दुश्मन नहीं रहेंगे। बादशाह हैरान रह गया। सिर्फ एक रात में उसका दुश्मन दोस्त बन गया था, मगर बादशाह अभी तक ये नहीं जानता था कि जब वो वापस अपनी सल्तनत में जाएगा तो एक और हैरानकुन वाकया उसका इंतजार कर रहा होगा। ऐसा वाकया जो उसके पूरे मुल्क की तकदीर बदल देगा। बादशाह सलामत, क्या आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए? बादशाह मुस्कुराया। हां, मुझे जवाब मिल गए। फिर उसने पूरे दरबार को दरवेश की बातें सुनाई। पहले तो दरबारी खामोश रहे, फिर एक वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, अगर हम वाकई इस उसूल पर अमल करें तो हमारी सल्तनत दुनिया की सबसे अच्छी सल्तनत बन सकती है। बादशाह ने फौरन फैसला कर लिया। इसी दिन उसने सल्तनत में नए कवानीन नाफिज किए। उसने हुक्म दिया, आज से हमारी सल्तनत में सबसे पहले इंसानियत को अहमियत दी जाएगी।
उसने कैदियों के साथ इंसाफ करने का हुक्म दिया, गरीबों के लिए नए खजाने खोल दिए, बीमारों के लिए शफाखाने बनवाए और सबसे अहम बात, वो खुद भी लोगों के दरमियान जाने लगा। अब वो सिर्फ तख्त पर बैठकर फैसले नहीं करता था, वो गांव-गांव जाता, लोगों की बातें सुनता और उनकी मदद करता। लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा बादशाह नहीं देखा था। आहिस्ता आहिस्ता पूरी सल्तनत बदलने लगी, गरीब खुशहाल होने लगे, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और दुश्मन कबाइल भी बादशाह के दोस्त बन गए। कई साल बाद एक दिन बादशाह जलालुद्दीन महल की छत पर खड़ा आसमान को देख रहा था। वही चांद चमक रहा था जिस रात उसके दिल में 3 सवाल पैदा हुए थे, मगर आज उसके दिल में बेचैनी नहीं थी, आज उसके दिल में सुकून था। वो आहिस्ता से मुस्कुराया और बोला, जिंदगी का राज बहुत सादा था, मगर मैंने उसे समझने में बहुत देर कर दी। फिर उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ रब, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सच समझने की तौफीक दी। और उस दिन के बाद बादशाह जलालुद्दीन सिर्फ एक ताकतवर बादशाह नहीं रहा, वो एक आदिल और मेहरबान हुक्मरान के तौर पर तारीख में मशहूर हो गया। लोग सदियों बाद भी उसकी कहानी सुनाते थे और वो हमेशा यही कहते थे, दुनिया में 3 चीजें सबसे अहम हैं, सबसे अहम वक्त, मौजूदा लम्हा, सबसे अहम इंसान वो जो उस वक्त तुम्हारे सामने हो, और सबसे अहम काम उसके साथ भलाई करना। और यही 3 बातें एक बादशाह की पूरी जिंदगी बदल गईं।